Good morning, students. Welcome to science class with Ghani sir of Priyadarshani High School. So, students, in our previous chapters, force in types of forces and detail about the frictional force we have studied. So, we are going to start a new chapter, synthetic fiber and plastics. Okay, students. So, you were familiar with different types of fibers, है ना? ईद के मौके पे हो या फिर शॉपिंग कर कर आते हो, वी विल फाइंड और वी विल सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, ओके, इन अ स्टोर एज वेल एज इन अ शॉप ऑफ टेलर ऑल्सो. सो हम एक एल्बम भी बना सकते हैं अगर हम चाहें तो, कि एक टेलर की दुकान पर जाकर उसके पास से डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स के मटेरियल के जो है ना छोटे छोटे पीसेस हम कलेक्ट कर सकते हैं. सो यू नो दैट क्लोथ्स कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर such as cotton, silk and wool. You also learn how they are prepared, right, in previous classes. Clothes made up of natural fiber. We wear a wide variety of fabric in our daily life, है ना? डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स हम इस्तेमाल करते हैं हमारे डेली लाइफ में, और सीज़न के अकॉर्डिंग टू सीज़न वी यूज टू वेयर द क्लोथ्स. आर ऑल ऑफ आवर क्लोथ्स मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर? क्या हमारे सारे क्लोथ्स नेचुरल फाइबर के होते हैं? You might have heard about the fabric such as polyester, nylon and acrylic, etc. They are example of synthetic fiber. Why do we call them as synthetic fiber? हम क्यों बुलाते हैं उन्हें, है ना? Synthetic fiber are not obtained from plant और animal source. ये plants या animal के source से नहीं ऑप्टेन होते हैं, इसीलिए हमें इन्हें आर्टिफिशियल फाइबर ये कहलाते हैं. दे आर मेड बाय द रॉ मटेरियल ऑप्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम. सिंथेटिक फाइबर आर यूज नॉट ओनली फॉर फैब्रिक्स but also preparing many household articles. Okay, let's try to understand that. So in your textbook it is given, identify household articles made up of natural and synthetic fiber. So for that it's given a table like natural fiber from plant, cotton, saris; natural fiber from animals, silk cloth; synthetic fiber पॉलीईस्टर के नाम से सुने होंगे आप. पॉलीईस्टर हो या फिर जो है ना नायलॉन हो, एटसेट्रा. दे आर फ्रॉम, देयर सोर्स आर फ्रॉम पेट्रोलियम. ओके, आर्टिफिशियली वो रॉ मटेरियल से बनाया जाता है. सो यू मे फाइंड मेनी अदर थिंग्स. तो सिंथेटिक फाइबर कहते किसे हैं ये जानने की कोशिश करेंगे हम. हैव यू सीन ए बीड निकल नेकलेस? और स्मॉल स्मॉल बीड होते हैं ना, जिसको हम क्लिप भी, पेपर क्लिप भी कहते हैं, उसकी नेकलेस के पैटर्न में, अरेंजमेंट में. सो bead and paper clip pattern, take a few paper clips and join them together. Okay, as you can see in this picture, observe the pattern of clip. Do you find any similarity between the pattern of bead in necklace and pattern of paper clip in chain? Each unit of paper clip or bead can be joined together to form a long chain like structure. Each head is separate unit, but when many such units are joined together, they form a new different structure. Similarly, synthetic fiber are made up of chain like structure
which are themselves formed by joining small units together. Each small unit in chain is a known as मोनोमर यूनिट। क्या कहलाया जाएगा वो? मोनोमर यूनिट। पेपर क्लिप को अगर हम जॉइन करके उसकी एक चेन बना दिए, ठीक है, तो हम गौर से देखेंगे तो वो चेन के एक एक यूनिट जैसा जुड़ा होता है ना, तो सिंथेटिक फाइबर भी उसी तरीके से बना हुआ होता है। तो अब ये अगर पूरे यूनिट्स को हम कंबाइन करके देखें तो दे आर कॉल्ड एज पॉलीमर, उसको पॉलीमर बोलेंगे। और ईच यूनिट को क्या कहेंगे हम? ईच यूनिट को हम कहेंगे मोनोमर। सिंथेटिक फाइबर are made up of polymers. Unlike natural fiber, synthetic fiber are made from petroleum based chemical or petrochemicals. So petrochemicals से ये prepared होते हैं। Petrochemicals are subjected to various chemical process to obtain synthetic fiber. Due to this they are called as synthetic fiber or artificial fiber. So do you know guys what does polymer means? Poly means many and mer means part. कई सारे parts का जब इकट्ठा होते हैं together they called as polymer. The word is derived from Greek. ये Greek word है, so we can say polymer is a structure made up of many small repeating units. So next है some synthetic fibers. तो synthetic fiber क्या है? How do you find whether a fabric is synthetic or not? हमें पता कैसे लगेगा? हम कैसे जान पाएंगे कि ये देखने पर कि ये नेचुरल फाइबर है या फिर सिंथेटिक फाइबर है? So take a piece of cloth and pull out a thread. ठीक है, एक छोटा सा पीस ऑफ क्लॉथ लेना है हमें और फिर उसके धागे अलग करना है। So unravel this thread. How long is the fiber? It is lustrous or not? Do these characteristics help in identifying a fiber? You can't identify the fiber by simple visual inspection alone in the absence of brand label. Then how to identify them? Let us see. ठीक है, आइए जानते हैं कि किस तरीके से एक थ्रेड को लेकर हम ये पता कर सकते हैं कि ये चीज़ नेचुरल फाइबर से बनी है या आर्टिफिशियल फाइबर से। अब थ्रेड अलग कर कर उसको इंडिविजुअल इंस्पेक्शन करने से विदाउट लेबल के तो पता नहीं लगेगा कि ये चीज़ नेचुरल फाइबर से प्रिपेयर की गई है या फिर आर्टिफिशियल फाइबर से। सो बच्चों, अनरेवल सेवरल रैप एंड वेफ्ट yarn using tweezer, hold the yarn to the edge of a flame, observe the change. ओके, करना ये है कि किसी पतले बाइंडिंग वायर हो या फिर हमारे पास ट्वीज़र है, तो वो ट्वीज़र से वो थ्रेड को होल्ड करके बर्न करना है। ठीक है, बट बी केयरफुल वाइल बर्निंग। ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट, प्रिकॉशंस के साथ। अगर हम मालूम करना चाहें तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। प्रिकॉशन लेना होगा, आग के करीब बच्चों नहीं जाना चाहिए और बी केयरफुल, हर चीज़ करने से पहले बड़ों का साथ लें, बड़ों को साथ लेके करें। ठीक है, इफ़ इट इज स्मेल लाइक बर्निंग हेयर द yarn इज़ वूल और सिल्क। ठीक है, अगर वो एक हेयर के बर्निंग के वक्त जैसा स्मेल आती है, अगर वो वैसा आता है तब तो हम ये कहेंगे कि ये सिल्क या फिर वूल होगा। इफ़ इट स्मेल लाइक बर्निंग पेपर द yarn मे बी कॉटन और रेयॉन। ठीक है, अगर बर्निंग पेपर की तरह स्मेल करता है वो, तब तो हम वी कॉल्ड इट एज कॉटन और रेयॉन। इफ़ yarn मेल्ट इन द फ्लेम, अगर वो धागा मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, सो इट इज़ कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर सच एज नायलॉन और आर्क्लिक।
You, you had learned in previous classes how natural fibers are obtained and fabric are made from them. Do you know how various synthetic fiber are obtained? Let us learn about it. आइए जानते हैं इस वीडियो में कि सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन कैसा किया जाता है। ओके, नायलॉन। आप लोगों ने जो हम कपड़े ड्राई करने के लिए रोप इस्तेमाल करते हैं यानी रस्सी, टूथब्रश और नायलॉन क्लॉथ्स के नाम से सुना होगा। सो ये एग्जाम्पल्स है नायलॉन जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। नायलॉन इज सिंथेटिक कोल, कोयला, वाटर एंड एयर, इन तीनों का मिक्सचर कर कर इसे प्रिपेयर किया जाता है। इट वॉज द फर्स्ट fully processed synthetic fiber. It became popular during Second World War. Now, nylon has replaced wool as a fiber used in making carpets. Nylon is also used in making parachutes. Rock climbers use nylon rope to climb mountains. It is used in making of swimsuit, sheer hosiery, sails, umbrella cloth, dress material, car, tires, etc. Why is nylon preferred to make good parachute and climb rope? Let us find out. चलिए आइए जानते हैं कि पैराशूट में और माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए जो रोप रस्सी इस्तेमाल की जाती है उसमें नायलॉन ही क्यों इस्तेमाल होता है। ओके, हाउ स्ट्रॉन्ग इज नायलॉन, इसकी स्ट्रॉन्ग कितना है ये वो जानते हैं। इसके लिए हमें चाहिए टेक एन आयरन स्टैंड विथ ए क्लैम्प, टेक कॉटन, वूल, नायलॉन एंड सिल्क थ्रेड। एक आयरन स्टैंड पे जो कि अभी पिक्चर में दिख रहा है आपको, इससे आप क्या करना है, इस्तेमाल करना है और वूल, कॉटन, नायलॉन के थ्रेड निकाल कर 50 सेंटीमीटर इन लेंथ ले लेना है। तो एक के बाद from it, add it free and attach a pan so that a weight can be placed on it. इसकी जगह हम कोई भी वज़नदार चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, add a weight starting from 10 grams, वन बाय वन। अब हमको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, आफ्टर ए शॉर्ट इंटरवल चेक करने के लिए इसके अंदर वो पैन के अंदर वेट बढ़ाते जाना है। ठीक है, टिल द थ्रेड ब्रेक डाउन, और तब तक करना है जब तक कि वो थ्रेड टूट नहीं जाता। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड, रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द थ्रेड ऑफ वूल, सिल्क एंड नायलॉन। ओके, सो वी कैन मेक even in a table how many grams that table had filled. ओके, कि ये टेबल में हमें वो डाटा नोट डाउन करना है कि कितने ग्राम पे वो थ्रेड टूटा। सो कंक्लूजन इज दैट फ्रॉम दिस एक्टिविटी के नायलॉन थ्रेड सबसे ज़्यादा वेट जो है कैरी कर सकता है। ठीक है, वो वेट जो है उठा सकता है। अरेंज द थ्रेड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो फिर जो है सिल्क, वूल, कॉटन के थ्रेड्स इसके बाद आते हैं, बट नायलॉन विल बी एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील वायर। सो नायलॉन स्टील वायर की तरह स्ट्रॉन्ग होगा। सो इस लिस्ट में ये नायलॉन के बारे में हमने जाना और इसकी स्ट्रॉन्गनेस कितना स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद
रेयॉन का इंट्रोडक्शन कुछ यूं है, वी नो अबाउट नेचुरल सिल्क विच इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म, राइट? Fabrics made of silk are very costly. It is not even accessible to all. Production and maintenance of silk cloth are also very difficult and time taking process, but its structure facilitates everyone. है ना? Fascinates everyone. Sorry, fascinates. सिल्क के थ्रेड अगर हम देखेंगे, उसका प्रोसेस हम देखेंगे, वो सीरीकल्चर होगा, फिर जो है ना ककून्स में से जो है वो सिल्क वॉर्म्स, फिर वो सिल्क प्रोड्यूस करेंगे अतराफ, फिर वो उनको बॉयल किया जाएगा, उसका एक प्रोसेस के थ्रू वो जाके सिल्क का थ्रेड बनता है, थ्रेड से फिर क्लोथ्स बनते हैं। लेकिन बच्चों इसमें ये बहुत हाईली मेंटेनेंस और वेरी केयरफुल करने वाला प्रोसेस है इसमें मेंटेनेंस। तो इसके रिप्लेसमेंट में जो सिंथेटिक फाइबर आया है, फ्रॉम मैनी ईयर्स साइंटिस्ट अटेम्प्ट टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली एंड देयर एफर्ट वेर सक्सेसफुल टूवर्ड द एंड ऑफ द 19th century. द फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क वॉज अचीव्ड इन USA. तो ये रेयॉन नाम का जो है सिंथेटिक फाइबर बनाया गया इन USA in 1911, but this fiber was named as rayon only in 1924. ठीक है, लेकिन इसका नाम कब दिया गया रेयॉन करके? 1924 में। द फर्स्ट रेयॉन फैक्ट्री इन इंडिया was established in 46 में। Where do we find rayon factories in our state? ठीक है, ये एक छोटा सा की पॉइंट है, आप सर्च कर कमेंट में बोलिएगा, प्लीज़ बोलिएगा। हाउ रेयॉन इज़ प्रिपेयर्ड, चलिए जानते हैं रेयॉन कैसे बनाया जाता है। वी नोटिस दैट पेट्रोकेमिकल आर द सोर्स मटेरियल फ्रॉम मैनी पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक फाइबर, बट द सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर रेयॉन इज़ वुड पल्प। रेयॉन का जो सोर्स मटेरियल है वो वुड पल्प है, लकड़ी का छिलका। ठीक है, इट इज़ द ओनली सिंथेटिक फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सेलुलोज एंड सो इट इज़ कॉल्ड सेलुलोज फाइबर। इफ रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम सेलुलोज देन व्हाई डोंट वी कॉल इट एज नेचुरल फाइबर? अगर देखो सेलुलोज से अगर रेयॉन क्रिएट होता है तो सेलुलोज तो फिर प्लांट्स में होगा, फिर हम उसे नेचुरल फाइबर क्यों नहीं कह रहे, आर्टिफिशियल फाइबर क्यों कह रहे हैं? द सेल्यूलोज दैट वी कलेक्ट फ्रॉम वुड और बैम्बू पल्प इज ट्रीटेड विथ सेवरल केमिकल्स। ठीक है, जो सेल्यूलोज होता है वो एग्जैक्ट बहुत कम मात्रा में निकलता है, तो उसको कई सारे केमिकल्स के साथ रिएक्ट करना पड़ता है। सो द सेल्यूलोज डिजॉल्व इन केमिकल एडेड टू इट एंड गिव ए सिरप। ठीक है, इसके अंदर जब सेलुलोज के अंदर जब दूसरे केमिकल्स मिलाए जाते हैं वो एक सिरप के फॉर्म में, सिरप जो हम पीते हैं ना उस तरीके के फॉर्म में। सिरप सिर्फ पीने का ही नहीं होता, वैसे बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो अब ये एक सिरप फॉर्म में यानी थोड़ा सा गाढ़ा फ्लूइड टाइप बन जाता है जिसको विस्कोस कहते हैं। विस्कोस रहते हैं स्पिनर में, वेरी वेरी टाइनी होल्स रहते हैं, यानी स्मॉल टाइनी होल्स रहते हैं इसके अंदर। सो ये सोल्यूशन जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू भी जो है इसके साथ मिक्स किया जाता है। दिस गिव्स अस सिल्क लाइक थ्रेड्स। तो अब जाके ये सिल्क लाइक थ्रेड के जैसे जो है ना एक रील के ऊपर जो है ये लपटे जाता है। Threads are cleaned with soap and dried. This new fiber is called rayon. Okay, so rayon is cheaper than silk and can be woven like silk fiber. It can be dyed in wide variety of colors. और इसको हम कई तरीके के कई डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स में हम इसे ले सकते हैं और इसको डाई किया जाता है।
इज रेयन यूज ओनली फॉर क्लोथ्स, क्या रेयन सिर्फ क्लोथ्स के लिए इस्तेमाल होता है? What are the other things that are made from rayon fabric? See, rayon is mixed with cotton to make bed sheet. ठीक है ना, बेड शीट पे हम देखते हैं कि एक थोड़ा सा थिक गाढ़ा या फिर टी शर्ट पे हमारी जो है पेंट जैसा डिज़ाइन किया जाता है प्रिंट के लिए। रेयन इज मिक्स्ड विथ वूल इन मेकिंग कारपेट्स, और रेयन को कारपेट्स में मिक्स किया जाता है ताकि वो सिल्क का रिप्लेस है बोल के। रेयन इज़ ऑफन यूज इन फैशन एंड होम फर्निशिंग, और कई सारी फैशन की चीज़ों में और होम फर्निशिंग के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। रेयन इज़ ऑल्सो फाउंड इन सैनिटरी प्रोडक्ट्स, जैसा कि डाइपर्स है, हगीज हो या फिर मम्मी की जगह जो है रेयन के गॉजेस आना शुरू हो गए अभी तो। ठीक है, सो रेयन इज नॉट परफेक्ट फाइबर टू प्रिपेयर ऑल फैब्रिक बिकॉज इट मेड अप फ्रॉम प्लांट सेलुलोज। इट अब्जॉर्ब वाटर इजीली, अब्जॉर्बिंग वाटर मेक्स रेयन वीक एंड कॉज द फाइबर टू ब्रेक इजीली। ठीक है, क्योंकि ये वुड के पल्प से बना हुआ है और ये पानी जल्दी सोख कर लेता है, तो हो सकता स्ट्रॉन्ग ना हो। ठीक है, जैसा कि हमने नायलॉन में देखा था, ये उस तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। सो गाइस, व्हाई डू वी कंबाइन फाइबर्स, अब ये हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो टिल देन watch this video, understand this video and ask the doubts please. Thank you for